Good morning, Morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. morning, sir. हम लोग को अटैच नहीं हो पाया बर्ड्स क्या बात है Guys, I just saw the recording, last time's recording. We had written 4 questions on board, barabar? Yes, sir. Yes, sir. Homework. You guys must have done it. Just a moment. Yes, sir. Have you all done it, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Easy questions. Easy the question though. Is there anyone having trouble in these questions, what I have given? Had I given the answer of all the questions, guys? No, sir. No, sir. No, sir. You said you'll give them today. Okay. अच्छा, give me a second, please. मेरे को ये earphone connect करना है. Guys. Answer for the first question, that was number 5. Someone interrupted me for this answer. That was cos inverse of 1 minus 2 times mod x divided by 3 plus log x to the base mod x minus 1. Yes. The answer for this question, had I given this answer or not? No, sir. You had not. No, sir, you are not given. Okay, so the answer is 0,2 excluding 1. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Is there anyone having doubt in this question? I can solve it if you have doubt. You have to Yes, sir. find. Answer is not matching. Yes, sir. Answer not matching. अरे कोस्ट जो है नितेश और ये सब क्या कर रहे हैं? जो ऊपर देखो ना अपने स्टूडेंट दीक्षा, अच्छा ऊपर कोई स्टूडेंट देखो ना, अगर वेटिंग में है तो ले लो ना उनको. दीक्षा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ऊपर वेटिंग लिस्ट देख लो ना एक बार. हाँ. So is there anyone having doubt in this question? Yes, sir. Yes, sir. Alright, तो बच्चों एक काम करते हैं इसमें 1 minus 2 times mod x. थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, कहीं दिक्कत आए तो पूछ लेना फिर. Between minus 1 and 1, 3 से multiply 1 minus 2 mod x is greater than equal to minus 3 less than equal to 3. 3 से multiply किया, फिर 1 subtract किया, minus 2 mod x is greater than equal to 1 subtract किया तो minus 4 -4 and 2. less than equal to 2. Dividing by minus 2 तो inequality का साइन फ्लिप करेगा, greater than equal to minus 1 and less than equal to minus 2 से डिवाइड किया 2. अच्छा, solution for this x belongs to r. You don't have to solve it. Just ये solve करना है तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा x belongs to Minus 2 to Minus 2 to 2. Yes. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब इसका डोमेन देखना है. इसका डोमेन x greater than 0. X not equal to First inequality mod x minus 1 greater than not 0 equal to and 1. X not equal to 1. mod x Not minus equal to 1. Equals to 1. 1. Mod x minus 1 greater than 0 का आंसर आ गया x not equal to 1. बच्चों से यस हो तो yes, sir. Yes, sir. 1 के अलावा कोई भी नंबर लिखोगे तो it is anyways going to be greater than 0. What do you Yes, say? sir. हाँ, Yes, sir. yes, sir. All right, and this will give you what? X minus 1 equal to plus minus 1. What is it implying? X is not equal to 0 and 2 and 0. 0 and 2. What is the common solution of these two? Can anyone tell me common solution of these two? 0 to infinity में क्या ऐसा है? Including 2. bracket minus 1 and 2 बाहर निकलेगा, बराबर? Yes, sir. Yes, Now sir. what is the common solution of these two? Sir, 0 0 to 2 to 2 excluding. excluding 1. 2 to 1, 1 to 2. 0 to 2 बाहर निकलेगा, इसलिए ओपन लगा दिया. और हाँ, इस sir. ड्यूरेशन में X. 1 भी बाहर निकलेगा. One Right? Excluding 1. हाँ, sir. That's it. Question number 5. Is there anyone having doubt during the solution? Question number 6. The question was log base half under root में था बच्चों.
log base half 5x minus x square by what? 4. So answer for this question was, I will write the answer. Answer for this question was open 0 comma close 1 union close 4 comma open 5. सर इसके पहले एक और क्वेश्चन था. Yes, sir. इसके पहले Skip और one question. question. log x square minus 3 Log equals x to plus 1. 1. Okay, इसके पहले एक और क्वेश्चन था. This was 7. All right. ये क्वेश्चन था क्या बच्चों? I'll just read the question. सर x plus 1 and x square minus 3x plus 2. X square minus 3x plus 2. Base में Base x plus 1. Base x plus 1. In Yes. domain of the function, no. Bachcho, what do you say? Yes, sir. हाँ sir. Today you'll get it. Okay. यही क्वेश्चन था ना बच्चों. इसका आंसर जो लिखा हुआ है मेरे पास में, that I'll tell you, -1, 1, -1, union 2 से comma infinity. 2 to infinity. Excluding 0. Including 0. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Is there anyone having doubt in this question? No. No sir. Sir, in this fifth question, sir, sir, sorry, sir. हाँ बोलो बोलो. Go ahead. Sir. Sir, in this fifth question, sir, mod of x minus 1 greater than 0, we can write x greater than 1. Right. No, कुछ भी. तो x की जगह 1 के अलावा कुछ भी रख. पता मॉड पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, mod आएगा. तो बस इसका सॉल्यूशन सिर्फ x नॉट इक्वल टू 1 हुआ ना. तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऑल सॉल्यूशन सेट. व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट रॉन्ग. व्हाट आर यू Yes. सेइंग? x ग्रेटर देन 1 सॉल्यूशन होगा. आई विल से यस होगा. तो x Yes. 2 नहीं होगा, मतलब 2 तो होगा ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 में. लेकिन हाँ, क्या sir. -1 नहीं होगा? होगा ना. -1 डाल दो ना यहाँ पे. हाँ सर, mod. हाँ, yes sir, yes sir. गॉट इट ना. वही गलती हुई होगी तो उससे. Yes sir, वहाँ पे. Alright. चलो बच्चों, नेक्स्ट क्या है? ये इसमें किसी को डाउट है क्या? सॉल्व करूं क्या? No sir. No, बहुत sir. good. You just need to raise your hand if you have doubt. कुछ छूटना नहीं चाहिए, इस बात ध्यान रखो. ये मैंने डे 1 तुम लोग को बोला है कि नोट्स मींस परफेक्शन, राइट? वही तुम्हारी जेई एडवांस की एक नीचे सिग्नेचर होती है. यस, आई एम परफेक्ट इन द थियरी पार्ट. सो कुछ छूट गया है, किसी को नहीं हुआ है. किसी ने ट्राई नहीं किया है तो फिर दोबारा ट्राई कर लो. लेकिन किसी ने ट्राई किया और नहीं हुआ है तो उसको बगैर पूछे आगे बढ़ गए, दैट मींस यू आर ओवर. किसी बच्चों को डाउट है? सर, 7th question में doubt. Yes, sir. 7th में हाँ doubt. सर, 7th. हाँ ठीक सर. है. 7th में doubt. ठीक है. 7th पे ध्यान दो. चलो अच्छा, 7th पे दो चीजें एक साथ एप्लीकेबल होगी. पहली चीज क्या एप्लीकेबल होगी? ए पार्ट क्या एप्लीकेबल होगा? 5x minus x square by 4. It should be greater than 0. Say yes or no बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं. तो x into 5 minus x greater than 0, ये आएगा ना. Yes, sir. अब बच्चों इसका वेवी कर्व अगर मैं लूं तो तुम्हें नहीं लगता इसका आंसर x belongs to 0,5 आएगा? Yes, Or you want me sir. to solve? Yes, sir. Yes, Open. sir. So guys, this is the first answer. I am putting a box here. Okay. Now going for the second one, B part. बच्चों B part क्या है पता है? ये वाला पार्ट भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी नॉन नेगेटिव होना चाहिए. log base half 5x minus x square by 4. It should be what? Greater than equal Greater to? than 0. Greater than equal. Equal to 0 भी आएगा ना बच्चों? हाँ सर, हाँ, इसीलिए sir. रॉन्ग हो गया. Greater than equal to 0. अब बच्चों आप मुझे बताओ, अगर मैं एंटी लॉग लूं, सिखाया है क्लास में मैंने ये, अगर मैं Yes, एंटी sir. लॉग लूं Yes, तो sir. इक्वालिटी का साइन फ्लिप होगा ना बच्चों? Change Flip होगा. होगा. Yes, sir. Base less than 1. ये होएगा 5x minus x square by 4. It should be less than equal to half. Less x than square one. divided by 1. 1. This implies बच्चों 4 से मल्टीप्लाई किया, सब चीजों को राइट हैंड साइड में ले गए, तो मेरे पास आएगा x square minus 5x Plus और 4 is greater than equal to 0. greater than equal to 0. Greater than equal to. बच्चों इसका फैक्टर क्या बन गया? x minus 4 One. into x X minus minus 1. Minus 1 greater than 0. greater than equal to 0. इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? Minus Belongs infinity to minus infinity to 1. Infinity to 1. 4 to infinity. 4 to Union infinity. 4 to infinity. 4 to infinity. 4 बच्चों inclusive. ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट B हो गया. अब A intersection B will be my answer. बराबर है? Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. And A intersection B is this set. देखो ना 0,5 ऐसे नंबर लाइन बना दो. बनाओ क्या यार, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा.
हाँ मत बनाओ जी सर, समझ गए सर। हाँ समझ गए सर। Visualize कर हाँ सर Easy उतना है ना, कर सकते। इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है। Yes. इसको हटा देते हैं। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन और बच गया ना, अभी 4 क्वेश्चन दिए थे ना। हाँ sir. हाँ सर चलो हाँ, स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है आज? हैंड रेज करो स्क्रीनशॉट जो भी ले रहा है। अरे कोई नहीं, अच्छा ठीक है। आदित्य बेटा टेक द स्क्रीनशॉट। बच्चों इसको कॉपी करने की जगह में इसको सॉल्यूशन से उस पे स्क्रीनशॉट से ही देख लेना। इसको भी कंटिन्यूअस कॉपी नहीं करते हैं, इट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। कैन आई रेस? Yes sir. Yes. Yes, sir. Alright. One more question I'm writing, that is question number 6, 7, 8. Question number 8. 8th question was, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था कि कौन सा था, मुझे याद नहीं आ रहा। ये यही था क्या? अंडर रूट में बहुत सारे बहुत log बड़ा हैं। क्वेश्चन था हाँ ये। सर, एक बड़ा Yes, log sir. log base minus 4 half 2 times log base 3. 3. 3. 1 plus 1 log plus log base 2. 1 plus log x base log 3. base 3x 3 ये है ना बच्चों? minus half. minus Minus half. नहीं अभी मत बोलो। देखो अपन ने एक Curly ब्रैकेट bracket ये वाला। गलत लगाया, ये ब्रैकेट अपने को curly यहाँ लगाना। curly bracket ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ क्लोज, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज और माइनस minus हाफ। half हाँ सर। बच्चों इसका आंसर आप लोगों को आया होगा 27 टू इनफिनिटी। Yes sir. It's greater than equal to 27. ये तो तुम्हारी बुकलेट का क्वेश्चन है, पता है? इक्वेशन इन इक्वेशन की बुकलेट में है ये क्वेश्चन। किसी फिर भी इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि आप लोगों को उस टाइम क्या होगा याद नहीं होगा, तो किसी बच्चे को अगर नहीं हुआ है तो बताऊं क्या? Yes sir. अच्छा अब जान लो, एक चीज सीख लो। ये ग्राफ किसका ग्राफ है बताओ, वापस बताओ। हालांकि तुम लोग बहुत बार बता चुके हो। log x Log On x. log x to the base a where a greater than 1. greater than 1 बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखो कि लॉगरिथमिक्स में अगर सारे के सारे बेस 1 से बड़े हो या फिर सारे बेस 1 से छोटे हो, आई रिपीट, all the bases are more than 1 और all the bases are less than 1, one out of the two things। अगर ऐसी हो तो नंबर ऑफ केसेस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं पहला केस लिखूंगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन तुम कॉपी नहीं कर पाओगे, राइट? इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको समझ लो ताकि तुम घर में खुद से कर पाओ। कॉपी क्यों नहीं कर पाओगे, अभी 1 मिनट में समझ में आएगा तुम लोग को। 1 plus log base 2 1 plus log x to the base 3 ये ब्रैकेट माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बताओ बच्चों यही है ना? yes हाँ सर। yes अब सब लोग ध्यान देंगे। बच्चों ये हाफ गया, हाफ को राइट हैंड साइड में ले गया, से यस और नो? yes sir Yes sir. equal to half जो sir बच्चा add की जो स्टूडेंट आप मान के चलो 2-3 सेकंड्स के लिए भी इधर उधर होगा ना, उसको फिर नेक्स्ट स्टेप समझ में नहीं आएगा क्योंकि चीजें गायब होंगी। लिख नहीं रहा ना, यहीं से गायब कर रहा हूँ। बच्चों बताओ अगर ये लॉग यहाँ एंटी लॉग लूं, इस पे एंटी लॉग लूं, yes sir तो राइट हैंड साइड में 4 टू द पावर हाफ आएगा ना, Yes sir. फ्लिप हो हाँ, जाएगा sir. साइन। राइट? तो बच्चों ये मैंने इरेज किया, यहाँ पे ये इरेज किया। बताओ राइट हैंड साइड में कितना लिखना पड़ेगा? 4 टू द पावर हाफ कितना होता है? लिखना सर साइन में फ्लिप। sir 2 and 2 अब देखो इसमें जो बच्चा पिछले स्टेप में सुनते टाइम गायब था ना, वो बोलेगा सर क्या किया, वापस बताओ, तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। इसलिए साथ में रहो। अच्छा 2 कैंसिल हो गया बच्चों, से यस और नो? yes sir Yes sir. आ जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला आ गया। हाँ सर। अब बच्चों एंटी लॉग लेंगे तो ये log 3 गायब हो गया, तो बताओ राइट हैंड साइड में 3 आ जाएगा 3 आ जाएगा आ जाएगा सर। 3 आ गया। और मुझे राइट हैंड साइड में ये कर्ली ब्रैकेट भी हटा दो, ब्रैकेट की क्या जरूरत है? फिर 2 जाएगा sir 2 हो जाएगा फिर हो बच्चों ये जाएगा। 1 गायब करूंगा तो राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 2. हो जाएगा अब ये हटा दो, कितना बन गया बच्चों? 4 हो जाएगा 4. और 4 सर। और ये हटेगा तो कितना बनेगा? 3. 3। और बच्चों ये हटेगा तो कितना बचेगा? 27. 27।
हाँ बच्चों सर यही कहानी हम लोग सेम कर सकते थे अगर ये सारे बेस कैसे होते, लेस देन Less than one. है ना। लेकिन बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आता, ध्यान देना, ये इतने ही दिए थे ना क्वेश्चन Yes, sir. Yes, sir. Great. बच्चों। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता, ध्यान देना सब लोग, हाँ, अगर मान लीजिए लॉग में बेस चेंज आता तो केसेस लेने पड़ते हैं बच्चों, ऐसा कुछ क्वेश्चन, ध्यान दो सब लोग। ये तुमने किया है लेकिन रिपीट करते हैं एक बार। लॉग बेस 4, लॉग बेस 2, यहां तक तो अपन लोग बड़े खुश हैं कि यार कुछ गड़बड़ नहीं हुई अभी तक। लॉग बेस हाफ एक्स, बच्चों इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन निकालना है बच्चों, अंडर रूट तो है नहीं कि कुछ गड़बड़ है, इसमें केस लेना पड़ेगा। पहला केस क्या है बच्चों, दिस शुड बी पॉजिटिव, से यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. log base 2 log base half x should be greater than 0, राइट। दूसरा केस, सेकंड केस बच्चों, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। Yes, sir. हाँ Yes, सर sir. तो सेकंड केस क्या हुआ, log base log of half, Log x x base base half half should be greater than 0 और बच्चों तीसरा केस x x base greater To be greater than. than 0. बस ये तीनों केस है। अब बच्चों पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 गायब होगा तो क्या आएगा बताओ यहाँ पे, 1 One greater आएगा। than 1 half greater than 1. log base half greater than 1। 1 अब Yes, बच्चों इस इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप करेगा कि नहीं करेगा, से यस और नो। होगा sir. Yes, sir. Sir. x Yes, लेस देन हाफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, Yes, half sir. to the power 1। yes, sir. X ये less than सब half. बच्चों को प्रैक्टिस में है या प्रैक्टिस करने के लिए कुछ शीट देनी पड़ेगी। Yes, sir. नहीं सर प्रैक्टिस में है मैं चलो वेरी Brain गुड में। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा बताओ, X less x than less half. than 1 Two Sorry, is one. greater Less than. than one। ये सेकंड हो गया। और थर्ड x ग्रेटर देन 0, बच्चों तीनों का कॉमन, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 to half. लेस देन हाफ होना चाहिए, लेस देन हाफ होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 0 to 0 0 to 1. हाफ। बच्चों समझ में आया क्या? हाँ Yes, सर sir. yes sir. देखो कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या है बच्चों पता है? कंक्लूडिंग रिमार्क है कि आप लोगों को लॉग में बेस अगर चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ केसेस डील करने पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 8 में केसेस डील करने की जरूरत नहीं है। ये क्यों हो रहा है बच्चों, इसको भी डिस्कस कर लो। देखो कोई भी ऐसा फंक्शन जो हमेशा ऊपर जा रहा हो, मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, या फिर बच्चों हमेशा नीचे जा रहा हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, मतलब x की वैल्यूज के लिए एक फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और एक फंक्शन या फिर हमेशा इंक्रीज हो रहा है, मतलब पूरी नंबर लाइन पे, तो बच्चों केसेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? केसेस लेने की जरूरत कहाँ पड़ती है बच्चों, जब किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा ना, ऐसा इस तरह का ग्राफ, तब केसेस लेने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज केसेस लेने की जरूरत नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इस पूरे फंक्शन के ग्राफ में देखोगे कि log हाफ x का ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है बच्चों, ऐसा बनता है, ऐसा आता है, यस सर ये log हाफ x है, राइट। और बच्चों log 2x का ग्राफ ऐसा कुछ आता है, log 2x का ग्राफ ऐसा कुछ आता है, राइट। तो ये दोनों ग्राफ मिक्स हो गए ना अभी। मिक्सिंग मतलब केसेस, रटो मत, रटोगे ना तो बहुत पछताओगे। सिर्फ ये दिमाग में रखो, मिक्सिंग मतलब केसेस। और ये भी तुम्हें समझ में आएगा मोनोटोनिसिटी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना बच्चों, दिस इज आई थिंक 3 months लेटर आई एम टॉकिंग अबाउट, तब समझ में आएगा कि हाँ यार केसेस नहीं लिया करते। अभी सिर्फ एक ही तो लाइन याद रखनी है कि x के साथ एक फंक्शन अगर सिर्फ बढ़ रहा है नो केस, सिर्फ घट रहा है नो केस, डायरेक्ट सॉल्व करो। हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों? आई विल रेज दिस एंड Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो गाइस हम लॉगरिथमिक्स और एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक फंक्शंस के डोमेन्स अभी तक कर रहे हैं। अब जो डोमेन का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है बच्चों, इसका केयरलेस मिस्टेक बहुत बच्चों से होता है। आई रिपीट, केयरलेस मिस्टेक होता है, ठीक है। सो लेट्स सी, एक बार किसको यार मैं भूल गया, किसको अपन ने अपॉइंट किया था? आदित्य sir. आदित्य। आदित्य एक बार जरा इसका वो ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल बेटा। सर तो मतलब हम लोग केसेस इसके लिए नहीं ले रहे क्योंकि वो हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है, लाइक हर एक के लिए इंक्रीज हो रहा है, होता जा रहा है, या फिर decrease हो रहा है? यहाँ पे हाँ यहाँ पर सारे बेस मोर देन वाले। ओके सर। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ऊपर नीचे हो रहा है ना, देख हाँ सर। ये डिक्रीज हो जाता है और ये इंक्रीज हो जाता है, तो पता Okay. नहीं क्या है। यहाँ का केस अलग लो, यहाँ का केस अलग लो, दो अलग अलग केस डिस्कस किए, ओके सर, गॉट। ठीक है। हाँ बच्चों
नंबर 9। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर अगर log 4 के आगे लेफ्ट साइड में अगर एक और log 3 होता, तो सर फिर हम लोग log 4 log 2 log x to the base half का भी हम लोग को करना पड़ता। अच्छा मतलब यहाँ इसमें एक और होता तो उसका भी डिस्कस करना पड़ता, एक चौथा केस बन जाता हो, और log 4 के लेफ्ट में होता तो भी करना पड़ता, तब भी करना पड़ता। मतलब अगर एक भी लाइक हाँ मतलब पूरी सीक्वेंस में अगर एक भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी को डिसहोल्ड करता है, समझ रहे हो बच्चों, यस सर, तो केस लेना ही पड़ेगा। ओके सर, गॉट इट, ठीक है चलो, यस सर। पिक्चर हुआ, स्क्रीनशॉट लिया। Yes, sir. ऑलराइट बच्चों, अगले क्वेश्चन में थोड़ा केयरफुल रहना। देखो एग्जामिनेशन में और जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ हम लोग को यहाँ पे ऐसा लगता है कि इट्स एन ऑर्डिनरी क्लास, वी आर लर्निंग समथिंग। लेकिन अगर टीचर पहले ही बोल दे कि भाई ये जो क्वेश्चन जा रहा है इसमें थोड़ा ध्यान रखना, गड़बड़ होने के चांस है, तो एग्जाम ही हो गया ना। सोचो मतलब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर के निकलते टाइम तुम क्या सोचते हो बच्चों? एक क्वेश्चन मतलब बाहर निकलते टाइम में यू आर वेरी हैप्पी, अरे यार सारे क्वेश्चन आते थे, मस्त मजा आ गया। और फिर जब दोस्त से डिस्कस करके तुम देखते हो यार क्वेश्चन नंबर 3 बाय मिस्टेक गलत हो गया, 5 गलत हो गया, 3-4 गलत हो गया, तो मुंह लटक जाता है। Yes, sir. बच्चों And कौन सा पेपर एग्जाम में तुम लाइक करते हो? मैं ही जवाब दूंगा, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। एक पेपर हो जिसमें तुमने बार बार क्वेश्चन पढ़ा, क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट 1-2, और समझ में ही नहीं आया, पता नहीं क्या हो रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं, कुछ क्वेश्चन में, राइट। एक क्वेश्चन पेपर वो हुआ जिसमें बच्चों सब कुछ आता है और मस्त हो गया, फटाफट लिख रहे हैं और बाहर आके और या तो बोल रहे हैं सब करेक्ट गए, या फिर बोल रहे हैं अरे यार ये केयरलेस। बच्चों पेपर तो वही लाइक करते हो ना जिसमें तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में ये टेंशन नहीं रहता कि यार ये पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, स्टार्ट कैसे करें। yes, sir. हाँ सर, और बच्चों वहीं पे रिजल्ट डिप करता है। एक बात समझ के चलना, इतना लंबा भाषण दिया है ना, तो कुछ तो है प्रॉब्लम में जो तुमसे गलती करवा सकता है। तो जिसको भी होएगा उसको हाथ ऊपर करना है। और ये जो मूर्ख लोग है ना, 10-15 लोग मतलब हैं करीब 10 के आसपास, उनको रिकॉर्डिंग मिलेगा नहीं अभी, ठीक है। तो उनको पढ़ने दो घर में आराम से, अपने हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग के बेसिस पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आईआईटी के लिए पढ़ ही नहीं रहे, एक्चुअली वो 10th अपना 12th स्टैंडर्ड बोर्ड क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, इसको थोड़ा सिखाना है मुझे इसमें। और जो cos x का आंसर किधर से किधर आता है बताओ? -1 to 1 आता है, सही है? Yes, sir. यस Sir. अगर मैं इसको एंगल मान लूं, एंगल, और उसको ऐसे लिखूं cos of cos x, तो बताओ बच्चों ये एंगल -1 रेडियन टू -1 रेडियन टू 1 रेडियन है। बच्चों बताओ करेक्ट है कि नहीं है? Yes, हाँ सर, Yes, sir. अच्छा -1 रेडियन टू +1 रेडियन कितना होता है बच्चों डिग्रीज में? 57 point something. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया ना ये एंगल। बच्चों बताओ सही है सर? Yes, sir. यस हाँ sir, this will always be possible. क्वाड्रेंट Yes. 1 एंड एंड 4। Four. अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताओ, cos थीटा, ये थीटा है बच्चों, ये थीटा है, ये थीटा है। cos थीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है बच्चों? Yes, sir. होता है. sir, होता है. बच्चों अब क्वेश्चन ये है, fx इक्वल टू अंडर रूट cos ऑफ cos x। बच्चों बताओ ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना? Yes, Yes, sir. positive. x को कुछ भी डाल दो, x को कुछ भी डाल दो, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, सही है सुनो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. व्हाट इज दिस इंप्लाइंग बच्चों? इसका डोमेन x बिलोंग्स टू R नहीं हो गया? Yes, Yes, sir. हो गया. हो गया ना? यस सर, हाँ sir, हो गया. ओके क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9 की 10 ये वाला? 10 sir. 10th हो जाएगा. 10। अब बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन है डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू दिस प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x। बच्चों शुरू हो जाओ फटाफट, 2 से 3 मिनट का टाइम है, दैट इज द मैक्सिमम टाइम फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली ट्राई। जिसको होएगा आंसर अनाउंस नहीं करना है, जस्ट यू नीड टू रेज हैंड।
सर एक डाउट था। हाँ बोलो ना आकाश। ये सर कोई सर आपने वो वहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखा, एक बार बता सकते हो वापस? बेटा -1 रेडियन कौन सा आया बता। -1 रेडियन तो अगर वैसे देखेगा तो ये ऐसा ही तो हुआ, ये -1 रेडियन टू 1 रेडियन डिग्रीज में तो देख नहीं सकते ना इस तरह से, यही हुआ ना। हाँ सर समझा समझा। Three students have done it. I'll wait till 20. Let's see how much time you guys are going to take. सर आपको चार्ट पे भेजो। नहीं बेटा अभी आंसर मत भेजो, 20 स्टूडेंट्स को हो ही गया ना, देखते हैं अभी। ट्वेंटी 29. Okay, let us confirm. क्षितिज तेरा आंसर क्या है बेटा? नल सेट। नल सेट, वेरी गुड वेरी गुड। Yes sir, null set आ रहा ये है। ऑप्शन, Yes sir. यस सर नल सेट। Correct है sir. ये ऑप्शन इज नल सेट। चलो कोई और भी देख लेते हैं, किसी का कुछ और आंसर आया हो तो। अभी वेरीफाई नहीं कर रहा हूं मैं। वेरी गुड किया, डजंट इम्प्लाई करेक्ट है, मे बी रॉन्ग। कोई और दूसरा आंसर बच्चों? सर x इज इक्वल टू एक 1। मिनट रुको ना, अनिकेत को पूछते हैं। अनिकेत तेरा क्या आंसर है? Sir, x equal to 1. x इक्वल टू 1। देखो चेंज हुआ ना आंसर, और भी कुछ आंसर होंगे। अभी रुको, कोई बोलेगा नहीं। x इक्वल टू 1। अनिकेत के बाद अक्षत को पूछते हैं। अक्षत Sir, 1. X equal to. x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 अक्षत पे का भी 1 ही आ रहा है। अच्छा रुको बच्चों, रुको देखो अभी क्या है, इसमें पोल होएगा ना तो अच्छे से पता रहेगा। कितने बच्चों को x इक्वल टू 1 आंसर आया? रेज योर हैंड। आउट ऑफ 37 पता है कितना नंबर? 23, 25। आउट ऑफ 37 29 स्टूडेंट्स को x इक्वल टू 1 आया है। दिस इटसेल्फ इंप्लाइज कि इसको करेक्ट होना ही होना है। 31 आउट ऑफ 39 31 स्टूडेंट्स को 32 हो गए अभी। हाँ बच्चों ध्यान से सुनना, आउट ऑफ 39 32 स्टूडेंट्स को x इक्वल टू 1 रॉन्ग आंसर आया है। रेशो निकाल के देखो बच्चों, परसेंटेज रेशो निकाल के देखो कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते टाइम तुम कितना दुखी होते हुए बाहर निकलोगे। पहले प्रेडिक्ट किया कि केयरफुल रहना, पहले प्रेडिक्ट किया हाँ कि केयरफुल रहना, गड़बड़ हो सकती है, फिर भी गड़बड़। दिस इज नॉट द आंसर। एक स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आया। आई वुड लाइक टू नेम, हाउ डू यू प्रोनाउंस AYATI? सर आयाती। आयाती। देखो शी इज गिवन द करेक्ट आंसर। एवरीवन के लिए तो नहीं डाला ना, पर्सनल डाला ना बेटा। हाँ सर हाँ, पर्सनल। दोनों का भी। बच्चों x इक्वल टू 0 भी एक आंसर आ रहा है। कितने लोग को आ रहा है? 2-3 लोगों को आ रहा है, मैं देख रहा हूँ उधर। जीरो कैसे? I सर don't know. एक और आंसर आ जीरो नहीं रहा है। सर प्लस माइनस 1 आता है। सेट आ रहा है, जीरो नहीं। टाइप किया है, I'll tell you। चलो मैं बताता हूँ। नहीं यार ऐसे नाम लेना ठीक नहीं है, बट स्टिल x इक्वल टू 0 तो आंसर आना पॉसिबल ही नहीं है बेटा। ये देख ये। Yes sir. Possible. तो ये अरे तो हाँ, ये तो सर। मतलब कोई रिजेक्शन में फटाफट से ही डाल देगा इसको, 0 हो ही नहीं सकता है ना। अब बच्चों तुम लोगों को शायद याद नहीं आ रहा जो मैंने तुम लोग को बताया था एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। याद करो बच्चों,
इसको हटाते हैं, इसका आंसर बहुत लोगों को करेक्ट भी आया बच्चों, -1,1 इज द आंसर। Yes, sir. करेक्ट आंसर। अरे बाबा इसमें तुम लोगों ने किया क्या है, ये जरा सोच के बताओ, तुम लोगों ने किया क्या है बच्चों इसमें? तुम लोगों ने यही तो किया है, 1 Sir, ये + x² अपॉन 2x इज बिटवीन -1 इज बिटवीन -1 and 1, बराबर यही किया है ना तुम लोगों ने? Yes, sir. अब क्या किया, इसको इधर ले गए, इसको लेफ्ट हैंड नहीं सर, नहीं सर, सिर्फ 2 से minus मल्टीप्लाई one किया पर है right x से plus नहीं। 1/x, तो इक्वालिटी 1 and -1 पे होल्ड करेगा। वो देखो वो उसने बहुत स्मार्टली किया है। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, इसको सॉल्व किया फर्स्ट इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व हाँ, किया सर। सेकंड इनइक्वालिटी, 1 इंटरसेक्शन 2 जो आता है ना बच्चों, ये तुम्हारा होमवर्क है, और ये होमवर्क जो आता में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आता है -1,1 आंसर। यस सर। ये तुम्हारा होमवर्क बन गया। अच्छा जो वो बोल रहा है ना उसको ध्यान से सुनो, वो बहुत अच्छा बोल रहा है, मतलब वो बहुत एलिगेंट सॉल्यूशन इसका दे रहा है। क्या बोल रहा है x पता है? + 1/x वाला। वो बोल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके by am x किया का था। वेट नाउ वेट प्लीज लिसन टू मी नाउ। वो बोल रहा है कि सर आप यहीं पे इसको निपटा दो क्वेश्चन को। आप क्या करो, इसको लिखो साइन इनवर्स, ये हो गया आपका 1/x + x डिवाइडेड बाई 2। बच्चों याद करो डे 1 में ग्राफ से जो क्वेश्चन सीखे थे उसमें हम लोगों ने यहाँ लिखा था x + 1/x is greater than equal to 2 for x greater than 0 and less than equal to -2 for -2 x for less x than 0। x less than बताओ बच्चों सीखा था कि नहीं सीखा था? Yes, sir. बच्चों एक बात बताओ, x + 1/x2 greater than 2 हो सकता है क्या डोमेन Yes, की वजह sir. से? Yes, sir, हो सकता है, रियल नंबर है। हाँ रियल नंबर है, लेकिन 2 से मोर देन 2 डिवाइडेड बाई 2 मोर देन 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? से यस और नो? हो जाएगा सर। हो जाएगा। साइन इनवर्स में मोर देन 1 चलेगा क्या? नो No, सर। नहीं चलेगा। इसका मतलब साइन इनवर्स में क्या चलेगा, इक्वल टू 2 चलेगा बस, और कुछ नहीं चलेगा। Yes, sir. इक्वल टू 2 Yes. चलेगा। बच्चों इक्वल टू 2 x की किस वैल्यू पे बनता है ये? 1. 1 हाँ। एक सॉल्यूशन आ गया इसका, x + 1/x cannot be greater than 2 by sin inverse not defined, right? इसका मतलब बच्चों x = 1 is the only solution at this place. x = 1 is the only solution. Now बच्चों tell me, ये less than -1 हो सकता है क्या बच्चों? No, sir. यानी न्यूमरेटर लेस देन -2 नहीं हो सकता ना? से यस और नो? Yes, sir. नहीं होना चाहिए। यानी न्यूमरेटर भी लेस देन -2 नहीं पॉसिबल है। साइन इनवर्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना बच्चों उसमें। हाँ सर। तो क्या होगा, x + 1/x क्या होगा, -2 ही हो सकता है ना बच्चों? -2 Yes, होगा sir. तो डिफाइन हो जाएगा ना। हाँ। इसमें x का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ? -1। Sir, -1। हाँ हाँ -1। बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. देखो यही कहानी है जो मैं तुम लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जगह में ऐसे क्वेश्चंस में आपको केयरफुल थोड़ा रहने का जरूरत पड़ता है। दिस इज बीन प्रूवन कि आप लोग को केयरलेस मिस्टेक होने के चांसेस अब भी बनते हैं। बच्चों इसमें किसी को डाउट है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता हूँ क्या? ऑलराइट, एक बार इसका पिक्चर लो जरा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी डोमेन वाला पार्ट ओवर हुआ नहीं है बच्चों, समझ लो एक चीज। तो मैं इक्वल टू लेना भूल गया था, बस स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। नहीं लेकिन एक स्टूडेंट ने जिसने बताया था ना, मैं उधर देख नहीं पाया, उसका माइक कौन था? मैंने बताया। हाँ सिद्धार्थ ने बताया था। सिद्धार्थ ना? Yes, sir. हाँ मतलब बहुत मस्त सॉल्यूशन बताया उसने, इट्स नाइस। ये तो देखो सॉल्व करना है ही, इसको तो डाउट ही नहीं है, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड एग्जाम्स हाँ, में, ठीक है। सर। बट ये बड़ा एलिगेंट सा है, ठीक है, फटाफट से हो गया ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ना, दैट्स अगेन अ टाइम पास क्वेश्चन, उसको मैं लिख करके छोड़ दूंगा, तो तुम ट्राई करते रहो। लेकिन उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बच्चों, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन डोमेन ऑफ द फंक्शन व्हिच इज चैलेंजिंग फॉर यू। आई रिपीट, फर्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 10, 11th question is again, I'll write the question and the answer. You guys have to try and have to discuss on group. Fx is equal to sin inverse log base 2 x square by 2. Okay. इसका आंसर है -2 to -1 close union 1 to 2.
तो अपना आंसर क्यों लिख दिया? सर अब भी सॉल्व करना है ना? अरे नहीं बेटा, इसको कर ले रहा हूँ होमवर्क में, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 12, आई एम पुटिंग अ स्टार मार्क हियर। दिस इज अ प्रॉपर रिवीजन ऑफ लॉगरिथमिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। जिसको होगा हाथ ऊपर करना है। अंडर रूट लॉग बेस एक्स कॉस 2 पाई एक्स। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। डोमेन और एक गांधी को हुआ। अच्छा फिर हैंड लोअर। अरे तो ऐसा क्यों किया तूने? सर हो गया है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, लाइक अच्छा एंड ठीक है, बस हो ही गया है। ठीक है वेरीफाई कर ले, नो इश्यूज। सर बस वेरीफाई कर। ठीक है ठीक है। यस सर डन। ऑलराइट, हैंड रेस करके रख, देखते हैं कितने लोग को होता है। ना यार प्लीज चैट बॉक्स पे मत लिखना। हो गया तो हाथ ऊपर कर देना। सिद्धार्थ प्लीज हाथ ऊपर करो ना। चैट बॉक्स पे बच्चों आंसर मत लिखो, पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है एक्चुअली, लंबे लंबे आंसर्स, फिर बहुत फटाफट फटाफट से आंसर्स आते हैं। 4 students have done it. I'll wait. सर वो cos 2 pi x ही है ना? हाँ बेटा। ओके सर। Our future doctors just created. Nine students have done it. फिफ्टीन, क्या बात है। ट्वेंटी 25 तक पहुंचते हैं, थोड़ा टाइम दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इट्स अ गुड क्वेश्चन बच्चों।
24। चलो 1 मिनट का टाइम हो, 25 30 तक देखते हैं। पिछली बार 37 स्टूडेंट्स ने किया था। Give me a second. Thirty-four students have done it. I'd like to ask 3-4 answers. Let's see. Dana, what is your answer? पहले सबसे पहले जिसने किया था आदित्य को उसको पूछते हैं। आदित्य तुम्हारा आंसर क्या है? सर x greater than 0. वेरी गुड, ये तुम्हारा ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी जैनम तुम्हारा? सर 2 to infinity, x greater than 2, greater than equal to 2. ओके, सी ऑप्शन। आयुष तुम्हारा क्या आंसर है बेटा? 1/4 to infinity -1. सर ओपन ब्रैकेट। सर जनरल सॉल्यूशन आएगा तो चलेगा? जनरली आना चाहिए, डोमेन का मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स होना चाहिए ना। डी ऑप्शन। ये हम लोग पूछते हैं देवांशी को पूछते हैं। देवांशी तेरा क्या आंसर है बेटा? यस सर, सो मेरा आया ओपन ब्रैकेट 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से 1। यस सर, सेम आंसर। सर और भी आएगा सॉल्यूशन। सर और भी आएगा सोल्यूशन। सर मैं बोलूं? वही सर, सॉल्यूशंस और आएंगे। सर मैं हाँ बोलो 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 बोलो, गो अहेड। सर 0 से 1/4 यूनियन 3/4 से 1 एंड ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 2 to 2 infinity। to infinity. Yes sir. इंटीजर। ओनली इंटीजर्स। यस Yes sir. अच्छा क्या बोलते हो? ये क्वेश्चन तुम्हें ये तो पता लग चुका कि ये क्वेश्चन कैलकुलस का नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री और किसका? इनइक्वेशन। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का है। मानते हो ना इस चीज को? तो यस सर। अगर गड़बड़ हो रही है तो अगर करेक्ट आंसर मिल गया है तो क्या बोलते हो? बताओ अभी कि ट्राई करोगे? सर बताओ ना। सर बताओ। अच्छा चलो सर ध्यान दो, बता दो। सब लोग सीखो। चलो ध्यान दो इधर। देखो बच्चों, सबसे पहली इनइक्वालिटी कौन सी सॉल्व होगी बताओ? cos 2πx should be greater than 0, बराबर ना? यस सर। हाँ सर। सेकंड इनइक्वालिटी क्या सॉल्व होगी बच्चों? x more than 0. x greater than 0. ये greater than 0, X greater than ये greater than 0, x greater than 0 and Not equal to 1. not equal to 1। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आना चाहिए। एंड कॉमन विद थर्ड, एंड व्हाट इज दैट? log Log base x cos 2πx should be greater than 0. to the base x should be greater than or equal to 0। बताओ बच्चों, यही है ना कहानी? यही Yes, चल रही है ना अपनी अभी? हाँ सर। हाँ सर। ये ग्राफ ध्यान दो सब लोग, ये ग्राफ ध्यान दो। बच्चों ये किसका ग्राफ है पता है ना? यस सर। cos 2π। cos 2πx का ग्राफ है ये 0 है और ये कितना है? 1 है। ये समझ में आती है क्या कहानी? ये 0 कैसे और ये 1 कैसे है? Yes sir. Yes sir. किसी को डाउट है क्या इस कहानी में? नहीं। ये 0 और 1 Yes, कैसे sir. लिख दिया सर ने? एकदम से ही कैसे लिख दिया? हम तो नहीं लिख पाए थे। ऐसा कुछ किसी को गड़बड़ लग रहा है क्या? No sir. नो सर। तो जो ये कितना हो गया? ये हाफ हो गया ना? Yes sir. और ये कितना हो गया? 1/4। से यस और नो? यस सर। ये इसका मिडिल पॉइंट तो 3/4 हो गया। से यस और नो? यस सर। अब बच्चों मुझे चाहिए cos 2πx greater than 0। ग्रेटर देन 0 चाहिए का मतलब ये चाहिए। से यस और नो?
बताओ बच्चों। Yes, sir. अच्छा, तुम लोग जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे तो इसका आंसर कैसे लिखते थे? अब ये सेम आंसर रिपीट होएगा ना बच्चों आगे वाले पार्ट में? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर तुम लोग ऐसे लिखते थे, क्लोज 0 टू 1/4 ओपन। बच्चों क्लोज 0 क्यों लिखा है बताओ? सर बिकॉज जीरो पे भी डिफाइंड है ना, जीरो पे भी डिफाइंड है। नहीं, अपन तो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना अभी, इससे इस पूरे से मतलब नहीं है, इससे मतलब है cos 2πx 0 पे 1 आ रहा है, मतलब बड़ा आ रहा है, 0 पे क्लोज लगेगा। यूनियन बच्चों आगे यूनियन बताओ। Open 3/4 3 to by 1. 4 to 1. 3/4 to 1 पे भी क्लोज आएगा ना बच्चों? 1 पे भी क्लोज आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ये तुम्हारा फर्स्ट सॉल्यूशन है बच्चों, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। मतलब जो ये फर्स्ट लिखा है ना, इसको यहाँ भी मैं फर्स्ट लिख दूंगा। लेकिन बच्चों ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, तुम लोगों को पता है ना? Yes, sir. इसमें प्लस एन ऐड होएगा, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर सॉरी। बच्चों पता है ना, आगे सेम ग्राफ बनेगा, Yes, sir. फिर आगे सेम ग्राफ बनेगा। तो दूसरा आंसर इसके आगे वाला इंटरवल बता सकते हो क्या बच्चों? 1 to 1 + 1/4। सो इसे यही आएगा ना? Yes. हाँ sir. वैसे ही ये repeat. 1 + 3/4 to 2 ऐसा आंसर आएगा ना बच्चों इसका? Yes, हाँ तो sir. हमने किया है कि नहीं किया है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में बच्चों? sir. किया है. Yes, sir. Sir, किया है। Yes, sir. किसी भी बच्चों को डाउट है और नहीं पूछ रहा है, वही गड़बड़ है, बस वही उससे वहां जाके फंसेगा। ये वाला आंसर आ गया इसका, इसमें एन ऐड करेंगे तो कितने इंटरवल्स आएंगे बच्चों? इनफाइनाइट इंटरवल्स आएंगे ना? हाँ Yes, sir. sir. ये तुम्हारा फर्स्ट Yes. का सॉल्यूशन हो गया बच्चों, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है, राइट? आप सेकंड के सॉल्यूशन पे आ जाओ। Excuse me, सेकंड का sir. सॉल्यूशन क्या है? सर और एक छोटा डाउट है। हाँ बोलो ना। सो वो आप कैसे श्योर हो कि वो 3/4 और 1/4 पे ओपन है? 3/4 पे 0 बन रहा है ना पीछे बेटा? चला गया ना ग्राफ। सुन ना, अरे 3/4 x पे is 0 equal बन to रहा है pi ना? by 2. एक सेकंड। cos x 2π is equal 0 to नहीं pi चाहिए by ना, 2. 0 से बड़ा चाहिए ना? अच्छा हाँ। Excuse me, sir. हाँ बोल ना। सर आपने वो ग्राफ में 1/4 और 3/4 कैसे लिखा? लाइक x is equal to pi by 2 और 3 pi by 2 का 0 ना. ओके सर, ओके। अरे बाबा, इसको 0 और इसको 2π ले ले तो इसका मिडिल पाई अच्छा, होता था, बराबर ना? यस और सर। इसका मिडिल π/2 होता था। ऐसे तो करते थे ग्राफ में अपन लोग, है ना? ओके सर, तो आपने बस पाई को एक दूसरे नंबर से रिप्लेस किया। हाँ, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। किसी फंक्शन का पीरियड अगर पाई है, पीरियड ऑफ f(x) इज t, तो पीरियड ऑफ f(kx) बच्चों क्या होता था? t/mod k। बताओ cos x का पीरियड कितना होता है बच्चों? 2π। 2π. Yes. तो cos 2πx का पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों? 1. 2π/2π। 1। तो देखो 0 से 1 में ग्राफ बनाया, 1 से 2 में बनाया, 2 से 3 में बनाया, ऐसे ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर। बराबर है? यस अच्छा सर। बच्चों, सेकंड इनइक्वालिटी तो फालतू ही होगी ना। सेकंड इनइक्वालिटी तो देखो ये ऑलरेडी सॉल्व्ड ही है, इसमें क्या सॉल्व करना है? x हाँ, greater than 0 and x not equal to 1। x greater than 0 and x। सर बस 1 पे ओपन कर देंगे। सुनो ना, अभी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, फिर बाद में कॉमन निकालेंगे ना। कॉमन Yes, निकालने sir. वाला काम तो शुरू किया ही नहीं ना अभी तक अपन लोगों ने। ये बच्चों सेकंड हो गया, अब थर्ड सॉल्व करना है। थर्ड ये वाला सॉल्व करना है। ये बच्चों एक बार बताओ, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में तुम लोगों को कुछ याद है? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में तुम क्या करते थे? दो केसेस x दो greater केसेस than x greater than 0 less than 1 and x greater than 1. When x is between 0 and 1, बराबर ना? Yes. हाँ सर। जब x between 0 and 1 होगा तो बच्चों ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. होगा। सर। तो cos 2πx लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों? 1 आ जाएगा ना? 1. हाँ सर। बच्चों ये तो हमेशा ही ट्रू होता है ना, ऑलवेज ट्रू। हाँ सर, Yes, all sir. real value। और रियल वैल्यूज। दिस इंप्लाइज व्हाट? इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 0, 1 आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? पार्ट 1 बोलो बच्चों। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ऑलवेज ट्रू का मतलब Yes। x बिलोंग्स टू r। अब x बिलोंग्स टू r तो आंसर आ नहीं सकता, ये वाला केस लिया है ना, तो फाइनल आंसर Yes. इन दोनों का कॉमन सेट आएगा ना बच्चों? Yes। हाँ सर। x बिलोंग्स टू 0, 1 इसका ए पार्ट का सॉल्यूशन ही आ गया। मैंने बोला कि ये इनइक्वालिटी x बिलोंग्स टू 0, 1 के लिए हमेशा ट्रू रहती है। पार्ट बी बच्चों, पार्ट बी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब बच्चों अब क्या होगा बताओ?
cos 2 pi x greater than equal to 1 आएगा कि नहीं आएगा? Say yes or no? Yes sir. हाँ सर. cos 2 pi x greater than equal to 1. अब बच्चों मुझे बताओ कि cos 2 pi x greater than 1 तो हो नहीं सकता, तो cos Yes. 2 pi x कितना होगा? Equal to Equal to 1. इक्वल टू 1 होगा, यानी बताओ बच्चों, बताओ 2 pi x का वैल्यू 2 n pi नहीं होगा? Yes sir. हाँ X सर. equal to n आ फिर जाएगा. n belongs to integers, बराबर ना? Yes sir. तो बच्चों बताओ x is equal to कितना आ गया? N. n आ गया ना? अब बच्चों जरा ध्यान दो, इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन, इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन बताओ Yes. क्या आएगा? x N belongs greater to क्या आ than गया or equal बच्चों? to 2. Natural numbers exclude X n. belongs to 2. X belongs 2, to 3, 4 up to so on, ये आएगा ना बच्चों? हाँ yes सर. sir. अच्छा बच्चों, A यूनियन B भी निकालोगे, A इंटरसेक्शन भी निकालोगे? बताओ. Union B. यूनियन B, अबे इंटरसेक्शन तो इन केसेस का हमेशा नल सेट ही आएगा ना? Yes sir. हाँ, तो A यूनियन B निकालो. तो बच्चों A यूनियन B आंसर क्या कितना आ गया बताओ? A यूनियन B आंसर कितना आ गया? A यूनियन B आंसर कितना आ गया बच्चों? इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे. 0 to 1 union 2 3 4. A यूनियन B का आंसर मेरा आ गया, यह आ गया 0 to 1 यूनियन 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. बोलो बच्चों, है कि नहीं है? हाँ और सर. ये Yes. इसको मैंने कर दिया बॉक्स. ये इनइक्वालिटी थर्ड का आंसर है. से यस और नो? Yes Yes sir. sir. अब बच्चों 1 2 3 का कॉमन बताओ. 1 2 3 के कॉमन में बताओ 0, 1/4, 3/4, 1. बच्चों जरा सोच के बताओ, 0 शामिल होगा क्या इसका? नहीं 1 होगा. 2 3 के कॉमन में नहीं नहीं होगा. होगा ना? नहीं होगा सर. Yes sir. 0 and 1 दोनों तो नहीं. इसका आंसर क्या है बच्चों? 0. एक मिनट रुको. इसका आंसर हुआ 0, 1/4 यूनियन 3/4, 3/4, अब बताओ बच्चों, बताओ इन तीनों के कॉमन सेट में कहीं भी 1 आ रहा है क्या? नहीं तो तीनों सर. के कॉमन में 1 आ रहा है क्या? 1 2 3 तीनों के कॉमन में 1 आ रहा है क्या? है ही नहीं, आ ही नहीं सकता. यहाँ भी 1 नहीं है और यहाँ भी 1 नहीं है, तो कॉमन में कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा ना. तो 1 नहीं बच्चों आएगा। ओपन आएगा क्या? बताओ 1 ओपन आएगा क्या? 1 ओपन यहाँ भी है. 1 ओपन तो यहाँ भी है बच्चों. अरे x हाँ, नॉट इक्वल टू 1 है, लेकिन 1 से पहले वाला तो सब चलेगा ना? Yes बोलो sir. बच्चों. Yes sir. यहाँ भी और 1 ओपन यहाँ भी है ना बच्चों? तीनों में हाँ. कॉमन है ना? तो 1 यहाँ पे ओपन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ बच्चों. Yes sir. Yes sir. अच्छा, अब बताओ कॉमन सेट में बच्चों एक बार बताओ, x नॉट इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो बताओ इसमें x इक्वल टू 2 आएगा क्या? सेकंड वाले बॉक्स में हाँ सर आएगा. आएगा. हाँ सर x आएगा. इक्वल टू 2 इसमें भी है बच्चों. x इक्वल टू 2 इसमें है क्या? हाँ हाँ N सर. add यहाँ किया है, हुआ है यहाँ सर. है. अरे जब इसमें ऐड करोगे तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, सब आएंगे ना बच्चों? Yes sir. Sir. 2 3 4 5 यहाँ भी आएगा ना बच्चों? हाँ Yes सर. sir. Yes sir. और 2 3 4 5 यहाँ भी है. इसका मतलब ये कॉमन हो गया ना, यूनियन. Yes. Yes sir. 2 3 4 5 up to so on. Guys, I believe you must have understood this. Yes, sir. Yes sir. सर आप थर्ड वाला पार्ट एल्जेब्रिकली सॉल्व करके बता सकते हो क्या? थर्ड वाला पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट? नहीं सर, थर्ड मतलब जो आपने ग्राफ से ऊपर किया था ना. ये वाला नहीं क्यों हाँ, करूंगा sir. algebraically? मतलब why will I solve a question with a method which is absurd actually? हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व कर, ये ग्राफ से ही सॉल्व करते थे ना इस तरह के क्वेश्चन हमेशा. सर वो आपने प्लस एन क्या लिखा है? प्लॉट के एक बार बता सकते हो? प्लस एन बेटा एक बात बता कि ये वाला क्वेश्चन cos x इक्वल टू हाफ, पता है x का वैल्यू क्या आता था? पाई बाई सर एक्स वैल्यू 60 हो सकता है एंड देन पाई बाई 3 पाई बाई 3 प्लस इसका पीरियड कितना है? cos x का पीरियड कितना है? सर 2n pi. सर 2n पाई है. पीरियड 2n पाई नहीं है, पीरियड तो 2 पाई है. 2 pi. 2 पाई है सर. 2 पाई. हाँ 2 पाई में n टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे. 2n पाई प्लस पाई बाई 3 ऐसे ही लिखते हैं आंसर्स. यस सर. इक्वेशन सॉल्व करते थे तो आंसर ऐसे ही लिखते थे ना. Sir, plus पहले एक सॉल्यूशन लिखो, फिर उसमें क्या ऐड कर दो? n टाइम्स पीरियड ऐड कर दो. यही किया सर था. 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 होगा. हाँ सर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3. अरे यार 2n पाई प्लस पाई बाई 3 होगा कि नहीं होगा? सर समझा सर. हाँ बराबर ना.
उसमें Yes. माइनस 2 पाई प्लस पाई बाई 3 पे एक आंसर आ जाएगा ना। Yes, sir. हाँ, तो n का वैल्यू इंटीजर लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। बेसिकली तुम लोगों ने जो सीखा है उसको रिपीट करता हूँ बच्चों। तुम लोगों ने सर तो क्या 1 सीखा के है? बाद 1 से 5/4 यूनियन वैसे ही आगे चलता रहेगा। ऐसे आगे चल के आता चला जाएगा आंसर। तुमने ये सीखा है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या इनइक्वेशन सॉल्व करो तो पहले उसके 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट में से फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट वाला आंसर लिखो, राइट? मतलब जो हाँ, भी सर। इसकी प्रिंसिपल ब्रांच तुम लोग पढ़ते थे, राइट? पहला आंसर लिखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा थोड़ी रिवाइज करेंगे, पहले वो आंसर लिखो और बच्चों उसमें क्या ऐड कर दो, n टाइम्स पीरियड ऐड कर दो। अब बताओ cos 2πx का पीरियड कितना? 1। 1 ये आंसर लिख दिया पहले पीरियड वाला 0 to 1 वाला आंसर लिख दिया ये वाला। अब जनरलाइज आंसर जो लिखोगे कैसे लिखोगे? प्लस कितना ऐड कर दोगे? n प्लस n टाइम्स 1, हाँ सर। राइट? अब n का वैल्यू 1 लिखा तो एक नया आंसर आ गया, n का वैल्यू 2 लिखा तो एक और नया आ गया, 3 लिखा तो एक और नया आ गया। वो नए लिख के बताऊं क्या मैं तुम लोग को? नाइस। बच्चों ध्यान है, पता है जो नए आंसर तुम लिखोगे ना वो कैसे लिखोगे? ध्यान देना, एक बार ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। ये नए आंसर्स कैसे होंगे? क्लोज 1 की जगह ओपन 1 से 1/4, क्योंकि जो n यहाँ 1 ऐड होगा ना बच्चों तो वो क्लोज में नहीं आ सकता क्योंकि कॉमन नहीं है ना। यस सर। ओपन 1 to 1/4 यूनियन 3/4 तो बच्चों ये क्लोज में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? से यस और नो? Yes, sir. 2 तो सब कॉमन में आ रहा है ना। तो बच्चों कॉमन आंसर, इन तीनों का कॉमन आंसर लिखते टाइम में n की कौन कौन सी वैल्यूज लोगे तुम? n का वैल्यू जब 1 लोगे तो ये यहाँ ऐड नहीं होगा लेकिन यहाँ ऐड होगा। से यस और नो? Yes, sir. यस सर। अब देखो अगर मान लो किसी को 10% वाला पार्ट समझ में नहीं भी आया हो तो उसको थोड़ा रिवीजन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कर लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि या तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लो। तो बच्चों जिसको ये क्वेश्चन में तकलीफ आया है ना उसको यही नोट्स में स्टार मार्क ऊपर क्या डालना चाहिए पता है? सॉल्व मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, राइट? वहां स्टार मार्क डालने का भी तरीका होना चाहिए ना कि वहां पे डाल दो कि सॉल्व मिनिमम 5 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन। तो फिर इस तरह की दिक्कतें जो तुम्हें यहाँ कॉमन सॉल्यूशन निकालने में आ रही हैं वो आगे नहीं आएंगी, राइट? बच्चों समझ में आ गया? क्वेश्चन का पहला आंसर समझ में आ गया? किसी को अब भी डाउट है? हाँ सर आप एक बार बता सकते हो ग्राफ कैसे प्लॉट किया? ग्राफ कैसे प्लॉट किया? हाँ सर। अच्छा चलो ठीक है, तुझे ये समझ में आया पीरियड वाला पार्ट? यस अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो x को kx से रिप्लेस करने से पीरियड कितना होता है? 0 to t by mod k हो जाता t है। upon mod k cos x का पीरियड कितना है? 2 pi तो cos 2πx का पीरियड कितना होगा? 2 pi upon 2x 1 हो गया, 1 पीरियड हो गया, हाँ सर। राइट? अब cos x का ग्राफ बना एक पीरियड में, एक पूरे पीरियड में ये ग्राफ बना दिए। हाँ सर। बस इतना ही बनेगा ना, आगे वाला ग्राफ नहीं बनाना ना। हाँ आगे नहीं। ये 0 आएगा, ये कितना आएगा बता? यहाँ 2 आता था ना, 2 की जगह क्या आएगा बता? सब pi अबे 2 की जगह 1 आएगा ना। ओ ओके सर। हाँ सर 1 है। 1 यस पीरियड निकाल दिया ना तूने? हाँ सर निकाला 1। यस गॉट इट? यस सर यस सर। थोड़ा सा देखो, मैंने पहले भी तुम लोग को बोला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इनइक्वालिटीज वाला प्रॉब्लम्स वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जिन बच्चों को थोड़ी तकलीफ आ रही है ना वो लोग को वो वाले टॉपिक्स पहले कर लेने चाहिए एक बार, ठीक है? फिर भी दिक्कत रहेगी तो बीच बीच में मैं सिखा तो दूंगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है? लेकिन एक बार खुद से भी इसको कर लो बच्चों। और किसी को कोई कंसेप्शनल डाउट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में? फाइन, एक पिक्चर लो फटाफट और जिसको कॉपी करना है कॉपी कर लो बच्चों।
जो कॉपी हो गया है तो मेरे को एक बार हिंट कर दो। Yes, sir. दो So can I raise this? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों को मिलेंगे। वो बाय द टाइम मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? वो बुकलेट से होमवर्क जो भी होगा दैट आई विल गिव। देखो, एक तरीका होता है पढ़ने का कि जैसे ये क्वेश्चन तुम लोग को अभी किसी स्टूडेंट को आया और यहाँ भी मेरे को दिक्कत थी, यहाँ भी मुझे दिक्कत थी, पता क्या करो, इसका तुम लोगों ने नोट्स तो बना ही लिया, अब एक बार रफ पेपर में खुद से अकेले से सॉल्व करो। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन को लगेगा ना, लेकिन बच्चों कॉन्फिडेंस ऐसे यहाँ है ना, वर्टिकली ऊपर चला जाएगा एक बार। लेकिन होना चाहिए क्वेश्चन, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। स्टार मार्क तो लगा ही दो कि यहाँ मुझे दिक्कत आई, राइट, और फिर उसके बाद खुद से एक बार सॉल्व कर दो, तो परमानेंट दिमाग में फिट हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद डिस्कस करो। फिर भी डिस्कशन से भी नहीं आएगा तो मेरे को नेक्स्ट टाइम पूछो, लेकिन इग्नोर नहीं करा। नोट्स इग्नोर किया मींस गए। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम लोग का पढ़ा हुआ है क्या? हाँ सर। ज्यादा मैंने नहीं करा, ऊपर ऊपर से बताया। अच्छा चलो ठीक है, नीचे नीचे से भी पढ़ लेते हैं, टेंशन मत लो। देखो Yes, sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx is equal to box x। क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बन रहा है, कैसे बन रहा है, ध्यान दो बच्चों। जैसे बेसिकली इसका मतलब ये होता है, जैसे कोई पूछे आंसर पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स 1.7, राइट, सबको पता है इसका आंसर 1 है, पता है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो इसका आंसर देने का तरीका क्या है? इसका आंसर जो एक्चुअली दिया जाएगा वो क्या दिया पुट ऑल द नंबर्स which are, sorry, numbers नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, put all the integers which are less than or equal to 1.7 and find greatest out of all। ये बच्चों इसका आंसर है, मतलब ये क्वेश्चन और ये उसका आंसर है बच्चों। ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ऑर्डिनरी ढंग से मैंने तुम लोगों को बताया है। ये लर्निंग पॉइंट है जो हम लोग को पता लग जाना चाहिए कि क्या होने जा रहा है। अब सब लोग जान दो 1.7 से कम इंटीजर्स, 1.7 से पहले इंटीजर्स क्या हुए बच्चों? 1 0 -1 -2 ये 1 ये 2, यहाँ कहीं 1.7 आ रहा है। 1.7 से कम इंटीजर्स मतलब 1, अच्छा इससे पहले 0 इससे पहले -1 -1 -2 up to -infinity। मतलब इन सारे इंटीजर्स में से ग्रेटेस्ट आंसर व्हाट इज दैट? 1। यही तो है जो लिखा है, उसका मतलब यही तो है बच्चों। हाँ सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसका अगर आंसर लेना है तो इससे पहले के सारे इंटीजर्स में से ग्रेटेस्ट जो होगा दैट विल बी योर आंसर। हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों? यस सर। अगर मान लो बच्चों इसमें ये क्वेश्चन पूछता, इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछता बच्चों व्हाट इज बॉक्स ऑफ 2, तो बताओ इसका आंसर क्या होता? 2। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यही होता ना, इंटीजर लिखते 2 1 0 -1 यही सब लिखते हैं ना, उसमें ग्रेटेस्ट नहीं आ जाता, राइट? अब बच्चों अब ध्यान दो जो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखने की जगह में हम लोग को यहाँ पे डेफिनेशन को ऑल्टर कर देना चाहिए।
बच्चों कोई भी इंटीजर लिखो, कोई भी इंटीजर का मतलब ऐसे बॉक्स एक्स कुछ भी लिखो, ये हमेशा या तो x के इक्वल होगा या फिर x से छोटा ही रहेगा। बच्चों इक्वल कब होगा बताओ? सर इंटीजर होगा Sir, when x is X is This is a integer. perfect integer. जब x इंटीजर होगा तब इक्वल होगा ना। इंटीजर डाल Yes, के sir. देखो, Yes, sir. इंटीजर देखो, ये डाला ना इधर, हाँ सर। हाँ sir. इंटीजर होगा तो इक्वल होगा, अदरवाइज हमेशा इसके दो कम केस होगा। बनेंगे बच्चों। केस वन क्या बनेगा इसका? बॉक्स x इज इक्वल टू x होगा इफ x बिलोंग्स टू X belongs to integer. Integers. इंटीजर। और बच्चों सेकंड बन गया बॉक्स x लेस देन x होगा इफ x इज नॉट इंटीजर। Not an integer. देखो ना, बॉक्स 1.7 का आंसर कितना आ रहा था बच्चों? 1.7 डालो तो यहाँ 1.7 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा ना बच्चों। 1.7 sir. ग्रेटर देन 1 बराबर ना? Yes, ये दो sir. parts है। और बच्चों ये ऑब्वियस है, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन x माइनस 1। से यस और नो? यस सर। हाँ sir. Yes. x को कुछ भी लिखो यही आना है, ये हमेशा इससे तो बड़ा ही होएगा। 1 सबट्रैक्ट कर दिया ना सीधा सीधा। So, तो ये ओरिजिनली Greater than डेफिनेशन equal हो गई जो हम लोग को ध्यान देनी है, राइट? अब बच्चों ये तो हो गया, मतलब बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना स्पेशल ढंग से तैयारी करवाना वो, और एक ऑर्डिनरी तरीका हो गया याद रखने का। वो क्या हो गया? सब लोग ध्यान दो। तो मानो आप लोगों को पूछा गया है, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया इस चैप्टर को, अब मैं ऑर्डिनरी वेज में जा रहा हूँ। ऑर्डिनरी वेज क्या है बच्चों? 0 1 2 -1 बॉक्स ऑफ 1.7 जहां आया तो जस्ट पहले वाला इंटीजर इज द आंसर 1। बॉक्स ऑफ 2 इज इक्वल टू बच्चों सेम इंटीजर आंसर है। अब बच्चों इधर से मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, बॉक्स x इज इक्वल टू 1, बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। बताओ बच्चों इस नंबर लाइन पे x के कौन कौन से वैल्यूज डालने से बॉक्स x 1 बनता है? सर 1 से 2 1 से 2 Close 1 to 2 open. 2 open. 2 open bracket, 1 close. x बिलोंग्स टू 1 से 2। बच्चों 2 पे ओपन आएगा, 2 क्लोज डाल दोगे तो ये इसका आंसर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा sir. 2 बन जाएगा ना, मानते हो ना बच्चों? Yes sir. Yes, sir. x बिलोंग्स टू 1 to 2। और बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? बॉक्स x इक्वल टू 3/2। No sir. Sir, no solution. No x solution. की वैल्यू है जो आंसर इसका नॉन इंटीजर देगी, नहीं देगी ना? नहीं मिलेगा सर। यस नल सेट ऐसे लिखते हो ना, नल सेट। हाँ Yes. अच्छा बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रहा 2। बच्चों बताओ 2 से पहले कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी क्या? इस इनइक्वालिटी को नहीं सेटिस्फाई sir. करेगी? नहीं सर। 2 सेटिस्फाई करेगा बच्चों? 2 यस सर। यस सर। 2 करेगा, और 2 से बड़ा सारा नंबर सेटिस्फाई करेगा। Yes sir. Yes, sir. तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया? x 2 to greater than- infinity. मतलब सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या करते हैं, सीधा सीधा जो है ना बॉक्स हटा देते हैं। थोड़ा That's it. ये याद करने का तरीका हुआ, ये समझने का तरीका नहीं है, याद करने का तरीका। ठीक है। अच्छा बच्चों अगर इसकी जगह ये क्वेश्चन होता, बताओ बॉक्स x ग्रेटर देन 2, सर 3 to infinity. एक बच्चों इसको इस तरह से पढ़ा करो, इंटीजर ग्रेटर देन 2 कभी भी सॉल्व मत करो, पहले उसको मॉडिफाई करो, मॉडिफाई एंड देन सॉल्व। इंटीजर ग्रेटर देन 2 का मतलब बच्चों इसको ऐसे लिखते हैं, बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। से हाँ sir. Yes sir. And then x greater than. हमेशा ध्यान रखो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वाला बॉक्स जो है ना पहले इक्वालिटी में चेंज होना चाहिए, जरूरी है। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया? X greater than equal to 3. x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, राइट? अच्छा मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो तुम लोग को सॉल्व करके और आंसर दे रहे हैं। नंबर 5, बॉक्स x लेस देन इक्वल टू 2। नंबर 6, box x greater than or equal to 3/2, box x greater than 1 less than 7, box x square greater than equal to 4,
less than or equal to 8. Box x square is greater than equal to -1, less than equal to 8. बच्चों 6, 7, 8, 9 फटाफट सॉल्व कर दो. सर हाँ बोलो. सर ये बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का आप समझा सकते हो थर्ड वन सर. हाउ इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2? नंबर लाइन देखना बेटा, ऑर्डिनरी वे. x की कौन सी वैल्यूज का बॉक्स 2 या 2 से बड़ा आएगा. 2 से पहले वाली कोई भी नंबर लेगा. पता है पहले क्या किया कर, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ ना उसको नंबर लाइन पे टिका लो. ठीक है. यस सर. अब उससे पहले वाले नंबर देख, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? नहीं सर, उससे पहले वाले नहीं कर रहे. 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ सर 2 कर रहे हैं. 2 के बाद वाले भी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना? हाँ सर सारे कर रहे हैं. हाँ यस सर समझ. ट्राई करो. सर एक मिनट प्लीज होल्ड रखो, पहले ट्राई करो एक बार. पहले बच्चों 6, 7, 8, 9 सारे ट्राई कर दो. 2-3 मिनट का टाइम ले लो, कोई इश्यू नहीं है. हाँ. किसी को कुछ बोलना है क्या? मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. अच्छा, जिनको सारे क्वेश्चंस बन गए हैं 6, 7, 8, 9 दे कैन रेज हैंड. गुड. कंटिन्यू करो, नोट्स भी बनाओ और कंटिन्यू भी करो.
Oh, guys, only 33 students. स्क्रीनशॉट हुआ क्या? All right, there are many of done. तो एक बार सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों. इसका आंसर सबसे पहले एक इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 का मतलब बच्चों क्या लिखूं यहाँ पे बताओ? 2 से infinity. Greater than equal to 2. Greater than equal to 2, yes. और इसका आंसर तो हम लोगों ने किया है ना बच्चों, पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आने वाला है. सही है सर? नो बच्चों, किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इसको पहले आप लोगों को स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा ना. क्या लिखेंगे बताओ इसको? बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 Less than equal to 6. बच्चों आंसर आ गया क्या इसका? बताओ. Yes sir. x बिलोंग्स टू कितना लिखूं? 2 से close to 7 7 open. 2 7. किसी बच्चों को इसमें डाउट है क्या? देखो ये तुम्हारा पहले किया हुआ है, लेकिन फिर भी अपन लोग बड़े एलिमेंट्री क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये काम में आना ही आना है, मान के चलो. चलो बच्चों, तो फिफ्थ का स्मॉलर देन 3 होगा ना? सिक्स्थ का स्मॉलर देन 3. Sir, fifth. फिफ्थ सर नीचे भी एक तरफ नीचे लिखा हुआ है. ये हाँ किया सर. नहीं क्या? हाँ, ये आएगा x लेस देन 3. x लेस देन 3 नंबर लाइन बना के चेक करो बच्चों. जहां दिक्कत आए ना वहां हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को नंबर लाइंस पे इंटीजर बना बना के तोड़ते रहो. आई रिपीट, इंटीजर्स बना के तोड़ते रहो. जस्ट ब्रेक इनटू इंटीजर्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन. और पुट द नंबर लाइन. बस एक सेंटेंस सफिशिएंट है. पुट द नंबर लाइन एंड सॉल्व द क्वेश्चन. दैट्स इट. ये इसमें किसी को डाउट है क्या इसमें? नहीं अच्छा बच्चों, नेक्स्ट वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना. 8th वाला तो Yes sir. 8th वाला तो डायरेक्ट हो गया ना. क्या करोगे बच्चों 8th वाले में? 2 2 3 और 2 to 3 open. x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन कितना बच्चों? 9 ना. Yes sir. Yes, sir. अब ये वाली इनइक्वालिटी तो सॉल्व करना आता है ना. मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3. आंसर कितना आएगा? Yes, x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन यूनियन कितना बच्चों? -3 से -2. -3 से -2. किसी बच्चे को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 8 में? आपने लेस देन इक्वल टू 8 लिखा है, 9 है. तो स्क्वायर के लिए तो 8 लिखा है, तो बॉक्स हटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा ना बेटा. एक्स स्क्वायर का वैल्यू तू 8.9 लिख, 8.9 लिख, 8.88 लिख, कुछ भी लिख. इसका बॉक्स 80 आएगा ना. सही है सर? यस सर. दैट्स इट. समझ में आया क्या? हाँ सर. ऑलराइट. अब बच्चों ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो. लास्ट वाला क्वेश्चन में तुम्हें नहीं लगता कि ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी ये तो सॉल्व ही नहीं करनी है? हाँ सर. सिर्फ यही सॉल्व करनी है बच्चों, सिर्फ यही सॉल्व करनी है, यही सॉल्व करनी है. और इसका आंसर हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों. इसका आंसर क्या है बता सकता है कोई मुझे? -3 से 3. -3 का आंसर x belongs to -3 to 3. x स्क्वायर इज लेस देन 9. मॉड x इज लेस देन 3. x बिलोंग्स टू -3, ये आ रहा है ना बच्चों? यस सर. हाँ सर. सर इसमें यूनियन आयोटा ले सकते हैं ना? हाँ वापस बोल. यूनियन आयोटा ले सकते हैं ना? बिकॉज हाँ ले सकते हैं बिल्कुल. ग्राफ बना आयोटा ग्राफ में रख के दिखा. नहीं, ग्राफ में तो नहीं आएगा.
हाँ तो फिर रियल नंबर सिस्टम में तो आएगा कैसे? हाँ सर वो हाँ तो सर बनाना भी फिर सर, तो हम अंडर रियल x में x लेस देन 0 भी सॉल्यूशन हो गया ना बेटा? इमेजिनरी के लिए नो सर, हम इनइक्वालिटी इमेजिनरी में इनइक्वालिटीज डिफाइन नहीं करते। नहीं करते? हाँ नहीं हाँ सर, तो फिर कैसे? अरे बाबा 2 greater than समझ 1 is right, but 2 plus I greater than 1 plus I is wrong. यस सर। You cannot हाँ compare the सर two imaginary numbers. अभी यस सर फालतू की चीजों में फंसेंगे नहीं, इससे बाहर निकलेंगे, ये जरूरत नहीं सर है इसकी। इरेशनल सर इरेशनल नंबर्स के लिए ये डिफाइन नहीं है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या क्वेश्चन पूछता है यार? इरेशनल नंबर का मतलब क्या बता? तू ये पूछ रहा है क्या कि बॉक्स x इज इक्वल टू √3 का आंसर निकालो, तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा ना। ओके लेकिन अगर ग्रेटर देन लिखेगा तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा बता? यस सर आएगा ना। तो इरेशनल नंबर पे कहाँ लागू नहीं होता है, क्यों? सर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √3 ऐसा कुछ नहीं होता है ना। नहीं आएगा ना कभी, नॉन इंटीजर ही नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लिया क्या एक बार? यस सर भेज दिया। ऑलराइट बच्चों ध्यान दो, पता है बॉक्स वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डोमेन निकालने के लिए बोलता है, ऐसे सारे स्टूडेंट जो यहाँ स्किप कर रहे होते हैं ना, उनको बाद में आगे जाके मतलब आगे वाले सर एक chapter- डाउट है सर। अरे यार कितनी बार पूछा था, पहले पूछना चाहिए था। जो बचा हुआ उसमें से है क्या? यस सर उसी में से है। हाँ बोल। सर 9th में हमने बॉक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 को क्यों नहीं किया सर? अरे इसका आंसर तो x बिलोंग्स टू r आएगा ना बेटा। मान ले ये रफ में ले लेता हूं मैं, कोई पूछेगा बॉक्स x स्क्वायर ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x बिलोंग्स टू r आ जाएगा ना इसका आंसर। तो कोई भी रियल नंबर डाल दो -1 से, इसका स्क्वायर करके बॉक्स लगा तो -1 से बड़ा ही आएगा ना। हाँ यस सर राइट, फिर इसका सॉल्यूशन निकालेगा। यस बराबर? सर फिर यस इन सर दोनों का कॉमन निकालेगा तो इसका सॉल्यूशन ही टोटल सॉल्यूशन होएगा ना। हाँ सर समझे। हाँ बच्चों ध्यान दो। अब ये क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट से इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। बच्चों व्हाट इज द डोमेन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, fx is equal to 1 by box x, fx is equal to 1 by box x square, fx is equal to 1 by box x whole square, and fourth fx is equal to cos inverse, just a moment, let me write the exact question. cos inverse वाला exact question क्या है? हाँ, box 3x square minus 1, cos inverse of box 3x square minus 1। बच्चों थोड़ा स्पीड में ट्राई करो, देखो कुछ आता है क्या? Yes sir. Sir, x can take all real values, right? डोमेन निकालने का मतलब क्या है बेटा? वही तो Domain is निकालना है values of डोमेन x को for तो which the function is defined, बराबर ना? So I'll Yes. lower the hands. The one who is getting all the answers will raise the hand. That's it.
Janam has done all. अच्छा ध्यान दो, ये चारों क्वेश्चंस के आंसर, आई रिपीट, ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स जो है, इनमें तुम लोग को स्पेशली 3 क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है? Denominator जीरो नहीं। इसको रिमूव करना है, बताओ ये है कि नहीं? यस सर। यस तो सर। बताओ बॉक्स एक्स को 0 बनाना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। हाँ सर। बॉक्स एक्स स्क्वायर को 0 बनाना है और और सॉल्व सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और बॉक्स एक्स को 0 स्क्वायर को 0 बनाना है। तो बॉक्स एक्स को 0 करना है सेम। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? और Yes, sir. फर्स्ट एंड थर्ड सेम हुए कि नहीं हुए, बताओ। सेम है। Yes, sir. Same है. So this is not a difficult question for sure. बच्चों एक चीज बताओ, पहला वाला क्वेश्चन बॉक्स एक्स 0 बन रहा है, इसका आंसर क्या आएगा? x belongs to 0 x belongs to 0 r to 1. excluding r minus 1 to तो 1 डोमेन हो गया, मतलब इसका सॉल्यूशन बताओ ना। सॉल्यूशन 0 से 1 to 1 excluding 1 excluding 1. बराबर ना? Yes sir. Yes sir. इजी है। डोमेन तो यहाँ आंसर यहाँ लिखेंगे नीचे। बच्चों इसका आंसर -1 to minus 1 to 1 open bracket. 0 and 1 बराबर ना बच्चों? yes sir yes sir तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख दूं, x belongs to -1 to 1। yes Yes, sir sir. yes sir बच्चे को दिक्कत है तो सॉल्व करें और देखें एक बार। बच्चों पीछे रहना इज समथिंग लाइक यू आर गोइंग इन हेल, मतलब आप लोग उसके बाद इंप्रूव करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते हो। तो किसी बच्चे को ये इनइक्वालिटी डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती है, तो उसकी प्रैक्टिस करो। हाँ, अभी लाइक नहीं कर रहा हूँ। बच्चे ये थर्ड वाला तो सेम ही हो गया ना, x belongs to 0। बॉक्स x स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट का ही आंसर हो जाए। हाँ सर. Yes, x sir. belongs to Same. 0 का वन आ गया ना बच्चों? क्या बोलते हो? Yes sir. yes sir तो बताओ बच्चों इसका 0 to डोमेन 1. क्या आ गया? आंसर्स, डोमेन वाले आंसर्स। आंसर 1, आंसर 1 क्या लिखूं बच्चों? R R minus excluding R 0 excluding 0 to 1. सेकंड का आंसर बच्चों R minus 1 to 1. minus -1 to 1। थर्ड का आंसर बच्चों same as R 1. minus Same as the first one. R minus 0 to 1. 0 to 1। किसी बच्चे ने फोर्थ किया है तो जरा फोर्थ का आंसर बोल दो एक बार। Sir, -1 to 1। sir, minus -1 1 to to 1 1 exclude होएगा. Open bracket. बच्चों इसको ट्राई करना है तुम लोगों को। अगर किसी को फोर्थ वाला नहीं हुआ है तो उस क्वेश्चन को उसको होमवर्क में ट्राई करना है। बच्चों आई रिपीट, होमवर्क में ट्राई करना है।